السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو فاطمہ؟ الحمدللہ۔ اور بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ بس ترجمہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ اب شادی کے بعد بھی پڑھتی ہو؟ بھلا کیا ضرورت ہے ان سب کی؟ اب تو ہمارا کام صرف گھر کو سنبھالنا، شوہر کی خدمت اور بچوں کو پالنا ہے۔ ارے اللہ کی بندی، خدا سے ڈر اور اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر۔ تجھے پتا ہے کہ تو کیا بول رہی ہے؟ کیا گھر سنبھالنے اور شوہر کی خدمت کرنے کے علاوہ عورتیں اور کچھ نہیں کر سکتی؟ دیکھو، جب ہمیں کوئی دنیاوی کام کرنے ہو تو ہم اسے کتنی آسانی سے کر لیتے ہیں، تو کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل نہیں کر سکتے؟ جبکہ اس سے ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا کام ہی ہے گھر کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، سینا پرونا، اور سب سے اہم کام بچوں کو پیدا کرنا اور ان کو پالنا۔ بھلا آپ کا شادی کے بعد پڑھنا یہ کچھ کام آیا؟ نہ کہیں امامت کروانی ہے اور نہ کہیں جاب پر جانا ہے، یہ سب تو مردوں کا کام ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لو، شادی سے پہلے جو اسکول اور مدرسے کی پڑھائی کی تھی وہ آپ کو کچھ کام آ رہی ہے؟ ارے بہن، تم تو مغربی تہذیب سے بہت ہی متاثر لگتی ہو، تبھی تو علم دین پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ ضروری نہیں کہ علم حاصل کرنے کا مقصد پیسہ کمانا ہی ہو، علم تو زندگی کے ہر موڑ پر کام آتا ہے، انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے کہ پیسہ کمانا مردوں کا کام ہے، لیکن پھر بھی تم بڑی غفلت میں ہو، تبھی تو جاہلوں اور گواروں جیسی باتیں کر رہی ہو کہ عورتوں کا کام بس گھر کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، بچوں کو پیدا کرنا، بس یہی رہ گیا ہے۔ کیا اس کے علاوہ ہم عورتیں اور کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے میری پیاری بہن، ہم اپنا مقام تو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے، ہم ہی اولاد کی پہلی درسگاہ ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تبھی تو ہمارے بچے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کی طرح بن پائیں گے۔ اور مولوی صاحبہ، میں بھی اپنے بچوں کو سنوارنا ہی چاہتی ہوں، بگاڑنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو سنوارنا ہی چاہتی ہے تو آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ ارے بہن، آپ نے تو کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ شگفتہ کی بیٹی کی شادی میں کیا دینے والی ہو؟ ارے ہاں، میں بھی وہی سوچ رہی تھی، سوچتی ہوں کیا دوں، کوئی ایسا سامان دے دوں گی جو اس کے کام آ سکے۔ ارے آپ کو کوئی سامان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب جگہوں پر 200 روپے کا لفافہ دے کر چلی آتی ہے، مجھے بھی اس نے 200 روپے ہی دیے تھے، میں 50 اور بڑھا کر دے دوں گی۔ اور ہاں، تم بھی جو دو یاد سے لکھوا لینا تاکہ تمہاری بیٹی کی شادی میں وہ بھی تم کو دے۔ استغفر اللہ، یہ کون سی نئی رسم شروع ہو گئی؟ ہدیہ تو دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے، نہ کہ واپس ملنے کی امید سے۔ چلو، اب تو ہر جگہ دین کی باتوں کو لے کر آ جاتی ہو، یہ سب تو معاشرے میں رہتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہو گئی؟ استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ایک قسم کا سود ہے، سود، اور سود لینے اور دینے والے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ خود کرتے ہیں۔ عائشہ بیٹا، دیکھو تو ذرا دروازے پر کون ہے؟ جی امی، دیکھتی ہوں۔ اور ہاں، تم بھی جو دو وہ لکھوانا مت۔ امی، مریم آنٹی آئے ہیں۔ آؤ آؤ مریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو اور بتاؤ کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ۔ ارے سعدیہ، تو بھی یہاں ہے؟ ہاں، میں نے اسے بھی بلایا ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کیجیے، میں آپ کے چائے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور بتا، کیا کر رہی تھی؟ میرا تو پورا دن کام میں ہی گزر جاتا ہے۔ ہاں یار، میرا بھی پورا دن کام میں گزر جاتا ہے۔ صبح میں اٹھتے ہی اس کے ابا کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہے، ناشتہ تیار کرو، کپڑے استری کرو، اور اتنے پر بس نہیں، شام کا بھی آرڈر دے کے جاتے ہیں۔ شام میں بریانی بنا، کچمبر بنا اور ساتھ میں میٹھا بھی بنا۔ بتا سعدیہ، اب کیا کروں؟ ایک طرف بچوں سے پریشان، دوسری طرف بچوں کے باوا سے پریشان، مرنے تک چین نہیں ملے گا۔ یہ آدمی لوگوں کو ہمدردی ہی نہیں، نوکر سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ میرا گھر والا بھی ایسا آج کرتا تھا، یہ کر، وہ کر، یہ بنا، وہ بنا، اب چپ بیٹھتا ہے۔ ایسا تو کیا کیا؟ تعویذ کیا کیا؟ نہیں، تعویذ تھوڑی کیا۔ پھر کیا کیا؟ کسی کو بتانا مت۔ ایک دن پونے میرے جگہ خوب پیٹا،
तब से सिर्फ आंखें दिखाती हूँ, डर के चुप रहता है। तू भी एहसास कर, तब अकबर ठिकाने आएगी। अब तो मैं भी एहसास करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आपा। आंटी आंटी अच्छे से बैठो, आप आ रहे हैं। कौन कौन आया है? खदीजा आप आए हैं। ये आपा को तो झप्पच नहीं है। अस्सलामुअलैकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आपा, बैठो। माशाअल्लाह आप हमारे घर तशरीफ़ लाए, बहुत ही खुशी की बात है। और बताइए, सब खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा बताओ, आप लोगों का क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है? क्या बताऊँ आपा, हमारी जिंदगी के रोने लेकर बैठे थे। अच्छा, ऐसा तो क्या हुआ? ये आदमी लोगों का कितना काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। एक तरफ बच्चों से परेशान, एक तरफ बच्चों के बाबा से परेशान। अरे सादिया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको पता नहीं शोहर का कितना बड़ा मकाम है और बच्चों की तरबियत का क्या सिला मिलता है। आपा सिला? सिला का क्या मतलब है? वो तो मुझे मालूम ही नहीं। सिला का मतलब है शोहर की खिदमत और बच्चों की परवरिश पर मिलने वाला अजर सवाब। ऐसा है तो सुनाओ, देखते हैं सुन के कुछ समाधान निकल आए और थोड़ा कुछ सुकून मुझे भी मिल जाए। नहीं नहीं मरियम, थोड़ा सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सुकून मिलेगा और बहुत खुशी भी मिलेगी। ठीक है, बताओ आपा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत किसी काम के लिए गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का काम किया और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? उस औरत ने कहा, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपके खाविन के साथ कैसा सलूक है? उस औरत ने कहा, मैं अपने खाविन के हक़ में कोई कोताही नहीं करती, मगर जो मेरे बस में न हो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ले देख ले, उसके यहाँ तेरा क्या मकाम है, वही तेरे लिए जन्नत और जहन्नम है। लो, शौहर कैसे जन्नत और जहन्नम? वो तो एक इंसान है। अरे सादिया, तुम मेरी बात को नहीं समझी। शौहर का जन्नत और जहन्नम होने का मतलब ये है कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो जन्नत में जाओगी और शौहर की नाफरमानी करोगी तो जहन्नम में जाओगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिस औरत को मौत ऐसी हालत में आए कि उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में जाएगी। आपा, अब ये बताओ कि किसी औरत का शौहर उससे कैसे राजी होगा? सादिया, तुम चाहती हो कि तुम्हारा आखिरी वक्त हो और तुम्हारा शौहर तुमसे राज़ी हो, नाराज़ न हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी खूब खिदमत करो। जब तक ज़िंदा हो कभी नाराज़ मत करो। और याद रखो, कितनी ज़िंदगी है, वही 60-70 साल, और तुम्हारी उम्र 30 की तो हो चुकी है। अब बाकी उम्र अपने शौहर को खुश रखते हुए गुजारो, फिर हमेशा के लिए रहमतों और बरकतों वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ। अच्छा ठीक है, अब तो मैं भी मेरे घर वाले को खुश रखूंगी और उनकी खिदमत को अपनी खुश नसीबी समझूंगी। लेकिन आपा, हमारे शौहरों के लिए भी कोई वजीफ़ा बता दो ताकि उनका दिल भी थोड़ा नरम हो जाए। आप अपने शौहर की खूब खिदमत करो और उनकी बातों को मानो और अल्लाह से उनके लिए खूब दुआ करो। देखना इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिलों को नरम कर देंगे। बहुत ही शुक्रिया आपा, ये दीवानी सादिया मेरे कान भर रही थी। अच्छा, ऐसा तो क्या कह रही थी तुम्हारे शौहर के बारे में? बोल रही थी कि एक बार कोने में ले जाकर खूब कुचल, आप ही सीधा हो जाएगा। मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था, तब से सिर्फ आंखें दिखाती हूँ तो डर के चुप बैठ जाता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह सादिया, ये तुमने क्या किया और ये दूसरों को क्या सिखा रही हो? जाओ अपने शौहर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, वरना याद रखो जहन्नम में डाल दिए जाओगी। और ये दूसरों के कान भरना बंद कर दो, वरना याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान में आग भर दी जाएगी और तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। अल्लाह मुझे माफ़ करे आपा, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन आप तो घर वालों से माफ़ी मांगना कहते हो, मुझे तो शर्म आ रही है। अगर तुम शर्म की वजह से माफ़ी नहीं मांगोगी तो याद रखो जहन्नम की आग दुनिया की आग से बहुत सख्त है। अगर जहन्नम की एक चिंगारी भी दुनिया में डाल दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी और ऐसे ही जहन्नम में आपको डाल दिया जाएगा। अच्छा आपा, ऐसा मत कहो, माफ़ी मांगना आसान है दोज़ख में जलने से। माशाअल्लाह, आप तो बहुत समझदार निकली, बातों को बहुत जल्दी समझ लिया।
चलो अब लगे हाथ बच्चों की तरबियत के बारे में भी समझ लो। जी फातिमा आपा, आप ही कुछ समझा दो। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो कोई बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी माँ की छाती से जो दूध का कतरा निकलता है और जो कोई बच्चा उसे पीता है तो हर घूंट और हर कतरे के बदले में उस माँ को अजर सवाब मिलता रहता है। तो सोचो, जब कोई माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएगी तो उसे कितना सवाब मिलेगा, हम तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जो कोई माँ अपने बच्चे के लिए जितना भी दर्द उठाती है, तकलीफ़ सहती है, अपनी नींद कुर्बान करती है, उसकी फ़िक्र करती है, उसे नहलाती सुलाती है, खिलाती पिलाती है, तो ख़ुद अपना बच्चा होने के बावजूद उस माँ को हर काम के बदले में अजर सवाब मिलता रहता है। तो मरियम, उन्हें बोझ न समझो। जब तुम उनकी अच्छी तरबियत करोगी तो वो दुनिया में भी तुम्हारा नाम रोशन करेंगे और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। अम्मी चलो ना, जलसे का टाइम हो रहा है, जलसा शुरू हो जाएगा, चलो हम जल्दी चलते हैं। हाँ चलो, आप लोग भी चलो, माशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी दीन की बातें बच्चियाँ अपने प्रोग्राम में पेश करती है और मोहतरमा मुअल्लिमा आपा अपने जानदार व शानदार बयान से हमारा दिल बाग बाग कर देते हैं। ईमान को भी तक़वियत मिलती है और बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। चलिए। नाना, ये बच्चे कहाँ चैन लेने देते हैं, कहाँ सुनने देंगे। नाना, मैं भी नहीं आ सकती, मुझे भी बच्चे परेशान करेंगे और घर पे भी काम बाकी है। अरे आप लोग मना क्यों करती हो? अगर औरतें चाहे तो घर के काम काज और बच्चों के साथ साथ हर काम कर सकती है, और हम औरतें शॉपिंग के लिए घर के काम काज को आगे पीछे कर सकते हैं, तो फिर दीन के लिए क्यों नहीं? और आप लोग बच्चों के लिए मना करती हो? तो सुनो, बच्चों को दीनी मजलिस में ले जाने के बहुत फ़ायदे हैं, और बच्चे तो 5 साल तक कोरी कैसेट के मानिंद होते हैं। इसीलिए तो हमें फ़िक्र है कि छोटे बच्चों को दीनी मजलिस में साथ ही लेकर जाना चाहिए, ताकि शुरू से उनके खाली दिल व दिमाग में दीन की बातें असरअंदाज हो। आंटी, मैं आपको एक बात कहूँ, छोटी ज़बान बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आज ही हमारी आपा ने क्लास में दीनी मजलिस के बारे में बहुत अच्छी फजीलत बताई है। अच्छा बेटा, बताओ आपकी आपा ने क्या बताया है? जी आंटी, हमारी आपा कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है कि जहाँ कहीं भी ऐसी दीनी मजलिसें हों और वहाँ कुरान व हदीस की बातें हों, तो ऐसी मजलिसों के ऊपर अल्लाह ताला सुकून व इत्मीनान का नुज़ूल अता फरमाते हैं। अल्लाह की रहमतें उस मजलिस को ढांप लेती है, फरिश्ते उस मजलिस को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और अल्लाह ताला उस मजलिस में आने वालों का जिक्र खैर फरमाते हैं। लिहाजा ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। माशाअल्लाह बेटा, आपके आपा ने तो बहुत अच्छी फजीलत बताई है। आंटी, हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसी दीनी मजलिस में जाने का मौका अता फरमाया। आंटी, हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी ऐसी दीनी मजलिसें हों वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि उससे हमारा ईमान मजबूत हो जाए, रूह पाकीज़ा हो जाए और इंसान अपनी आखिरत की तरफ माइल हो जाए और नेक अमाल करना उसके लिए आसान हो जाए। माशाअल्लाह बेटा, आपने छोटे होकर हमारी आंखें खोल दी। मरियम, हमें घर के कामकाज आगे पीछे करके जाना चाहिए। जी सादिया, सही बात है। इतने बड़े इंसान का खुदा की तरफ से वादा है, तो हम क्यों महरूम रहे। चलो सादिया, हमें चलना चाहिए। चलो हम सब साथ में ही चलते हैं।